Man is moving with this speed and rain appears to be falling along this direction with this much of angle. Boy is moving along an inclination and rain appears to be coming from this angle, that direction. परेशान करके रख देता है. Easy idea, सीखते हैं. चलो let us start. तो रेन मैन साम आसानी से करने के लिए लेट अस डू दीज 3 आइडियाज. फर्स्ट आइडिया नंबर 1 आ जाए भाई. ये कौन है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस डायरेक्शंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे. सेकेंड आइडिया क्या है? आ जा भाई. ये कौन है? रेन. वी हैव टू कन्फिगर द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ वेक्टर. लाइक if rain originally is coming in this direction, we will write velocity of rain vector given by a I cap plus b j cap. That means what? That means velocity of rain would be having some component of its velocity along x axis, that is I cap, and some component of velocity along y axis downwards, that is j cap, that we have considered positive. Simple. थर्ड क्या है? We have to consider the third thing. भाई तू भी आ जा. कहाँ छुप के बैठा है? ये आ गया हम लोगों का हीरो. ये हीरो जो है it is moving with a velocity, let us call it v man. ये man, girl, boy, woman कुछ भी हो सकता है, but for the sake of understanding let us call it v man. v man would be given by the magnitude v man मान लो, और डायरेक्शन यहाँ पे तो आई कैप दिख रहा है along the direction given. So these are the 3 things. Let us first make clear ideas about these things. सेकेंड आइडिया, हम लोगों को यह समझना है कि व्हाट इज द velocity magnitude of rain. Magnitude of this velocity is given by, just we know vector ideas, root over a square plus b square. First idea khatam. Second idea, sometimes we are required to find the direction of this rain, original direction. So if it makes an angle say theta with vertical means y axis, then we can write tan theta इक्वल्स टू. अब एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जिसका साथ एंगल थीटा लोगे ना, दैट इज वर्टिकल. सपोज यहां पे y एक्सिस ले रहा हूं मैं, उसका वैल्यू को नीचे लिखना. tan थीटा तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो समथिंग बाय समथिंग नीचे कौन आ जाएगा? b. why? because we are considering angle theta with y axis which has a component b here. so वो नीचे आ जाएगा, बाकी कंपोनेंट एक किधर आएगा? ऊपर. दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ रेन. ये एक आइडिया आ गया अबाउट रेन, दैट इज रियल वेलोसिटी ऑफ रेन. नाउ कम्स द मेन आइडिया जिससे साम बनेगी, दैट इज what would be the relative velocity of rain with respect to the man. And we know the idea that जिसका रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हैं उसे क्या किया जाता है? सबट्रैक्ट. लेट अस सबट्रैक्ट द वेलोसिटी ऑफ द मैन from the velocity of rain. So according to these things that we have taken, what should be the relative velocity? Simply vr ai cap plus bj cap minus vman vm I cap. I cap माइनस कर दो. a माइनस vman I cap प्लस b का तो कोई जोड़ीदार नहीं है फिलहाल, so प्लस g b j cap. This is the relative velocity of rain with respect to the man. Now this would also be having 2 things. Number 1, the magnitude of relative velocity of rain with respect to man. How much would that value be? Root over this square plus that square. That means a minus vm plus b. But more importantly, याद रखो मेरे बात, more importantly we will always be finding, or most of the time, the angle of this relative velocity. Say it is alpha with vertical. That would be given by vertical का साथ एंगल अल्फा लिए हैं, तो vertical means y axis, तो y axis का वैल्यू नीचे आएगी, जैसे मैं शुरू में बोला था. यहाँ पे भी देखो नीचे आया, तो इसका y axis का वैल्यू कितना है? रिलेटिव वेलोसिटी का b. और x axis का वैल्यू कितना है? रिलेटिव वेलोसिटी का बात कर रहा हूँ, a माइनस v man. ये हो गया total concept about relative velocity rain man problem. रेन का ओरिजिनल, मैन का ओरिजिनल यहां तक है. और ये पार्ट क्या डिस्कशन दिखा रहा है? दिस पार्ट. ये पार्ट का डिस्कशन हो रहा है कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी होगा कितना.
रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। ये अल्फा किसको लिए हैं यहाँ पे, सपोज द रिलेटिव वेलोसिटी, ये जो वेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, इफ वी ड्रॉ दिस हियर इट वुड बी जस्ट लाइक दिस, आई कैप जे कैप का साथ, दिस इज दैट रिलेटिव वेलोसिटी। और इसका x कंपोनेंट कितना है, a माइनस भी मैन, इसका y कंपोनेंट कितना है, b। हम लोग अल्फा एंगल किसका साथ लिए हैं, tan अल्फा कितना है, a माइनस भी मैन, डिवाइडेड बाय जिसका साथ एंगल लिए हैं y एक्सिस, उसका वैल्यू कितना है, b, वो नीचे आ गया। दैट वाज द थिंग आई वाज गोइंग टू टेल यू। सो वी आर रेडी विद दिस थिंग्स, लेट अस गो फॉर प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल, एंड दिस इज द आइडिया that we have learned. Let us start. एक बार पढ़ लो, पॉज कर लो वीडियो, एक बार पढ़ लो। A man holds an umbrella at 30 degree with the vertical to keep himself dry. इसका मतलब क्या है कि ये जो मैन था ये अपना अम्ब्रेला ऐसे पकड़ के रखा है और ये एंगल गिवन, ये कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है कि ये जो है ये ए आई कैप और बी जे कैप हम लोग लिए थे, उसमें से दिस एंगल इज गिवन विद द वर्टिकल 30 डिग्री है, दिस 30 डिग्री। हम लोग आसानी से क्या करेंगे, नंबर 1 क्लू को अप्लाई करेंगे, tan थीटा दैट इज tan 30 डिग्री हियर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। दैट मीन्स अगर वैल्यू पुट कर देंगे tan 30 डिग्री कितना आ जाएगी, 1/√3 इक्वल्स टू a बाई बी, एंड फ्रॉम दैट वी गेट b इक्वल्स टू a√3। चलो इसको रखते हैं फिलहाल। सेकेंड आइडिया, देन ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग वर्टिकली। अब बताओ कि व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स रनिंग देन कैसा रेन ड्रॉप्स दिख रहा है। It is given there, I have drawn this for you. So the raindrops apparently, that is relative velocity Vrm, that means relative velocity of rain with respect to the moving man appears to be vertically downwards. तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं, एक ही आइडिया लगाओ आंसर बन जाएगा। कैसे, what should be the relative velocity of rain with respect to the man, this is, याद करो फॉर्मूला ऐसा बना था, a माइनस भी मैन आई कैप प्लस b का जोड़ीदार नहीं था, अकेला b जे कैप। अब यहाँ पे बता रहा है कि इट इज प्योरली वर्टिकल। देखो अगर कोई वेक्टर प्योरली y एक्सिस में है, जे कैप में है, तो उसका x एक्सिस कंपोनेंट कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स वॉट एवर x एक्सिस कंपोनेंट वी हैव रिटन शुड बी 0। और अगर इसको 0 बनाएंगे तो बताओ a कितना आ जाएगा, दिस गिव्स अस दैट a इक्वल्स टू भी मैन। चलो भी मैन का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, द पर्सन इज रनिंग, सो वी गॉट वन अननोन आउट ऑफ द टू, ए दैट इज 10। देखो यहाँ पे दो अननोन ना हमेशा होगा, रेन का वेलोसिटी अगर निकालने जाएंगे ए आई कैप और बी जे कैप, इसमें से एक अननोन निकल गया, एक का वैल्यू। अरे दूसरा अननोन तो ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, कैसे, इन टर्म्स ऑफ ए दो, कितना, बी इक्वल्स टू a√3, दैट मीन्स 10√3। अरे तू साथ क्यों आ रहा है, 10√3, ये हो गया b का वैल्यू। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ रेन वेलोसिटी, हाउ मच, वेक्टर रेन वुड बी गिवन बाय ए आई कैप 10 आई कैप, b j कैप 10√3 j कैप, 10√3 j cap. So what would be the magnitude of this velocity? Simply magnitude of velocity of rain mod of this would be given by root over a square plus b square, that is root over of 10 square plus 10√3 whole square, 10√3 whole square। ये कितना आ जाएगा, 10 को कॉमन ले लूँ, √3 स्क्वायर 3 और ये 1 4 का रूट ओवर करने से 2, दैट इज 20 आ रहा है। नोटिस करके देखो, आउट ऑफ द ऑप्शंस आई हैड गिवन यू टाइम, पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। फिर से देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ मीन्स ओरिजिनल वेलोसिटी, रियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द मैन मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी। तो विथ रेस्पेक्ट टू द मैन ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, जो कितना होगा ये, तो विथ रेस्पेक्ट टू मैन मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसमें से तो फास्ट पार्ट 0 बन गया था, नोटिस करके देखो, बोला हुआ था सामने। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू द मैन, बचा कितना फिर, बी जे कैप, फर्स्ट पार्ट तो 0 बन गया था,
तो अगर बी जे कैप बना दैट मीन्स इट शुड बी इक्वल टू, बी का वैल्यू देखो कितना आया है 10√3, so it should be 10√3 then j cap. So its magnitude will be only 10√3 along y axis. तो देखो तो 2 और 4 में से कौन सा 10√3 है? 2. So this 2 are correct, 1 and 2. Option B is right. We got it. नेक्स्ट साम देखो तो साम बोल रहा है मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. सो ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 2i कैप. सामने जा रहा, बोला द रेन अपीयर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकल एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. अब इसमें ना ये लाइन में ना देयर आर 2 क्लूज. देखो दो क्लू इसलिए चाहिए होता है. आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ कि ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, किसका? रेन का वेलोसिटी VR is given by AI cap plus BJ cap and these two are unknowns. Out of these two हम लोगों को और एक चीज सीखने को मिला लास्ट पेज में, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मैन होता है. और वो कितना होता है भाई? दोनों को माइनस करने से कितना आ जाता है? A - 2i कैप प्लस B जोड़ीदार नहीं होता है, जो J कैप. ये पहले भी हम लोग देखे थे. अब मैं क्लू की बात कर रहा था. क्लू 1, इट इज फॉलिंग, अपीयरिंग टू फॉल प्योरली वर्टिकल. अपीयरिंग मतलब रिलेटिव वेलोसिटी. वर्टिकल फॉल कर रहा है मतलब जस्ट लाइक द लास्ट सम, इसका एक्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ वाई कंपोनेंट जे कैप होना चाहिए. तो एक्स कंपोनेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0. एक्स कंपोनेंट का वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, 0 होना चाहिए. दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 2. फर्स्ट आंसर निकल गया. एक अननोन. सेकंड अननोन क्या? बी को निकालना है. वो भी इसी में छुपा हुआ है. कैसे? बिकॉज देखो इसका रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू भी दिया हुआ है 2. अब ये रिलेटिव वेलोसिटी आर भी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, बचा कितना? फिर ये तो गया वाई एक्सिस को सिर्फ बचा है कितना? बी जे कैप. अब इसका वैल्यू कितना बोल रहा है? बोल रहा है कि 2. सो यहां से क्लियरली अंडरस्टैंडेबल दैट बी का वैल्यू और कोई नहीं 2 है. So we got both A and B. That means रेन का जो ओरिजिनल वेलोसिटी है that was assumed by us, that is AI cap, that is 2i cap, BJ cap, that is 2j cap. यही आंसर है. यहां पे पूछा है कि उसका वैल्यू बताओ और डायरेक्शन बताओ. ओके भाई साहब कोई बात नहीं, इसका वैल्यू चाहिए आपको. ये लो मॉड कर लिए, √2² + 2² √² + b², 2√2 आ गया. डायरेक्शन चाहिए आपको, ये लो tan थीटा बना दिए. क्या भाई क्या? हम लोग जानते हैं A/B, क्योंकि दोनों इक्वल है. ये 1 आएगा और यहाँ से थीटा कितना आ जाएगी? 45 डिग्री. अब देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू कहाँ पे आ रहा है. पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया. इतना इजी है. चलो ना लास्ट एग्जाम बनाते हैं, ये वाला सम. ये थोड़ा सा टफ है. अगर तुमको ये ठीक लगा तो ही लास्ट और एक सम में जाएंगे, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है. इट डिपेंड्स ऑन यू. देखो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आइडिया इज रेन इज फॉलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 12√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये रियल वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे. ये 12√2 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड स्पीड लेके आ रहा है. और इसका दो कंपोनेंट्स होंगे. कैसे निकालेंगे हम लोग? क्योंकि ये दिया हुआ है कि इसका वर्टिकल का साथ एंगल जो है ना, ये 45 डिग्री है. एक ही बात है, एक्स एक्सिस भी 45. तो ये हो जाएगा 12√2 cos 45 डिग्री. एंड वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस विल बिकम 12. और ये हो जाएगा 12√2 sin 45 डिग्री. फॉर सेम रीजन इट विल ऑल्सो बिकम 12. सो कैन वी राइट दैट वेलोसिटी ऑफ रेन, देखो यहाँ पे दिखा रहा velocity of rain, ये original velocity है. So can we write velocity of rain is given by 12i cap plus 12j cap. मैं देखो धीरे धीरे कर रहा हूँ so that it becomes very easy for you to understand and retain that knowledge. So velocity of rain तो इस साइड में हो गई, उसका वैल्यू तो ऐसा आ गया. अब बारी है velocity of the man. अब मैन बोल रहा है पैराशूट लेके ग्लाइड कर रहा है ऊपर की तरफ, उसका वेलोसिटी देखो u. Now if we are having u this time, so this time बार बार जो मैं बोल रहा था ना जोड़ीदार नहीं है b का, अब होगा देखो कैसे. Because this angle is given 37 डिग्री. So ये हो जाएगा भाई साहब u by cos 37 डिग्री. अब हो जाओ भाई साहब, आपका वैल्यू कितना है? cos 37 डिग्री को पूछ रहा हूँ.
ये बता रहा है कि 4/5। हाँ ठीक ही बोल रहा है भाई साहब। आपका वैल्यू कितना होगा? साइन 45 डिग्री कितना हो जाता है? 3/5। सॉरी, साइन 37 डिग्री कितना हो जाता है? 3/5। कॉस 37 डिग्री हो जाता है 4/5। सो u इंटू साइन 37 डिग्री विल बिकम 3/5। चलो दोनों कंपोनेंट्स मिल गया। तो u वेक्टर दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन को अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहेंगे u वेक्टर के हिसाब से, तो इट वुड बी u इंटू 4/5 किधर? आई कैप प्लस ये कितना है? u 3/5। नहीं, माइनस लिखना पड़ेगा, u इंटू 3/5 and then j cap. Why? You could have written j cap negative also because at the beginning, नोटिस करके देखो, एकदम शुरू में मैं बोला था तुम लोगों को कि ये कन्वेंशन लेके हम लोग चलेंगे, सामने एनीथिंग पॉजिटिव, नीचे एनीथिंग वेक्टर का बात कर रहा हूं पॉजिटिव। सो एनी वेक्टर अपवर्ड मींस नेगेटिव। दैट्स व्हाई यहां पे जो हम लोग कर रहे हैं, देखो यहां पे इसका वेलोसिटी अपवर्ड्स हो गया, उसलिए नेगेटिव लिखा मैं। चलो इतना तक समझा दिए। नाउ द बेस्ट पार्ट क्या है? द सिंपल पार्ट। कलर बदल लेता हूं, अच्छा लगता है। कैसे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। कैसे मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन हम लोग जानते हैं माइनस किया जाता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हम लोग ये फॉर्मूला भी जानते हैं, कितना होता है भाई? वेलोसिटी ऑफ रेन इससे वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? आई कैप से, आई कैप को सब्ट्रैक्ट करो। सो 12 वैल्यू से हम लोग सीधा ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना लिखेंगे? 12 माइनस 4/5 u, इतना आई कैप। क्या मैं ठीक लिखा? मैं ठीक लिखा। फिर हम लोग जे कैप इसका वैल्यू से 12, जे कैप इसका वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा। कीप इन माइंड 12 माइनस माइनस ऑफ दिस विल मेक इट पॉजिटिव। सो इट वुड बी 12 प्लस 3/5 u, इतना जे कैप हो गया। साम हो कैसे गया? ये तो आप सिर्फ इक्वेशन लिखे सर। लेट अस कम टू द टॉपिक नाउ। टॉपिक में ये बता रहा, देखो द रेन अपीयर्स टू द ग्लाइडर टू बी फॉलिंग वर्टिकली। फिर से वही वर्टिकल आ रहा है, ऐसा लग रहा है रेन उसको। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी में जो रेन का वेलोसिटी होगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, इट विल अपीयर टू बी कमिंग वर्टिकली। मतलब वर्टिकल जे कैप रहेगा, बट क्या नहीं रहेगा? आई कैप। दैट मीन्स दिस पार्ट विल नॉट रिमेन। इसका सिंपल सा माने क्या है कि ये जीरो होगा, ये वैल्यू जीरो। दैट मीन्स 12 इक्वल्स टू, ये जीरो अगर होना है 4/5 u। तो इससे u कितना आ जा रहा है? वी कैन सी दैट u फ्रॉम हियर इज कमिंग 15। क्या 15 वैल्यू कहीं पे है ना? पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो आंसर मिल गया, ये सम भी बन गया। अब इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग तो लेट अस कम हियर। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सम है जिसका मैं बात कर रहा था। ये वीडियो को पॉज करके सम को देख के यू मे ट्राई दिस बाय योरसेल्फ। हो सकता है कि अभी तुमसे ये बन जाए, अदरवाइज फॉलो मी। थोड़ा सा देखते रहो वीडियो, धीरे धीरे करते हैं इसको। द आइडिया इज, ये जो बॉय है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो 5 मीटर पर सेकेंड। सो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो पहले 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनका एंगल कितना दिया हुआ है? देखो इनका एंगल ये दिया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री दिया होगा? वही 37 45, हाँ 37 डिग्री दिया हुआ। सो दिस एंगल इज 37 डिग्री। मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल का साथ एंगल दिया, नहीं हॉरिजॉन्टल का साथ एंगल दिया है। तो एक ही बात है, ये हॉरिजॉन्टल का साथ अगर एंगल 37 डिग्री है, एक ही बात है कि ये हॉरिजॉन्टल का साथ भी तो 37 ही होगा। दैट मीन्स दिस कंपोनेंट विल बी 5 cos 37 degree. That means 4, and this component would be 5 sin 37 degree. That means this would be 3. So as this is actual velocity of the man who is moving along the inclined plane, so we can write velocity of man is having 4 I cap and
3 जे कैप, दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव। ओके, नाउ लेट अस कम टू वेलोसिटी ऑफ रेन। अब बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन मालूम नहीं हम लोगों को, स्पीड ऑफ द रेन ही पूछा है, किधर होगा। कलर चेंज करता हूं और वेलोसिटी ऑफ द रेन लेट अस एज्यूम इट टू बी ए आई कैप, जैसे हम लोग करते हैं, प्लस बी जे कैप। चलो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। सो हम वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। और वो कैसे मालूम होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सिंपल सी बात है, देख रहे हो, बार बार लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, ये प्रैक्टिस हो जा रहा है और ईजी बन जा रहा है एवरी टाइम। तो देखो इसको कैसे लिखना है। वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, इतना आई कैप इतना जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन इतना आई कैप इतना जे कैप। अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, माइनस कर दूं, रेन माइनस मैन, आई कैप माइनस आई कैप, दैट मीन्स इसका आई कैप ए, इसका आई कैप 4, ए माइनस 4 आई कैप, प्लस जे कैप माइनस जे कैप, इससे इसको माइनस करना है, समझ रहे हो? तो सो इट वुड बी बी माइनस 3 जे कैप। मिल गया हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में हम लोगों के लिए क्या क्लू छोड़ा है, सो दैट वी कैन इजीली फाइंड दिस। क्या क्लू है वैसा बताओ जल्दी। बोल रहा है कि ऐसे जब जा रहा है, देन ही फाइंड्स दैट द रेन इज फॉलिंग, फिर से वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड फिर से हम लोगों को क्या करना है, द एक्स एक्सिस कंपोनेंट को कितना बनाना है, 0। इसको अगर 0 बैठा दिए तो वी गेट a equals to 4। चलो एक अननोन मिल गया, वी आर ओनली वेटिंग फॉर द सेकेंड अननोन टू कम। अब उसके लिए फिर से क्लू देगा, दिया है ना, देखो सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस देखो, व्हेन ही मूव्स अप द सेम इंक्लाइंड प्लेन, मतलब एंगल सेम रहेगा, विथ सेम स्पीड, मतलब वेलोसिटी भी सेम रहेगा। तो सोच के देखो एक बार, उस तब ये जो मैन का वेलोसिटी है ना, वो सिर्फ चेंज हो जाएगा। कैसे? सोच के देखो, रेन का ओरिजिनल वेलोसिटी वही रहेगा, बट इफ द मैन इज नाउ मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन, वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगा? अब मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, देखो। नाउ इफ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन दैट वाज गिवन एज 5, ऐसे अगर ये जा रहा है तो इसका फिर से दो कंपोनेंट्स होंगे। लेकिन देखो नोटिस करके, ये एंगल 37 डिग्री था, आज भी ये एंगल 37 डिग्री है, आई मीन फॉर द अपवर्ड मोशन ऑल्सो। सो इफ दिस इज 37 डिग्री, सो ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? इजी है, ऐसा टफ नहीं। देखो 5 cos 37 डिग्री 4 हुआ था, तो जैसे कि ये 3 होगा। सो कैन वी राइट वेलोसिटी ऑफ द मैन। अब जो बना इसको थोड़ा डैश लिख दे रहा हूं, बिकॉज इट इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट टू दैट, दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ मैन डैश लिख रहा हूं। वो कितना हो गया? अभी ये ऐसा हो गया, देखो नोटिस करके, -4 आई कैप, हाँ, प्लस जे कैप का क्या हाल है, -3 जे कैप। ये माइनस माइनस क्यों लिखे? समझा दिया हूं मैंने, सामने प्लस नीचे प्लस, ये तो ऊपर है और पीछे है, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव। मिल गया। सो द न्यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू द मैन, भी आर एम डैश लिख दिया। ये कितना हो जाएगा? फिर से वही फॉर्मूला बनाएंगे, रेन माइनस मैन, आई कैप माइनस आई कैप। देखो तो इस बार आई कैप 4, और इसका रेन मैन का भी, सॉरी मैन का भी बन गया है -4, सॉरी। तो ए -4 अब कितना बन जाएगा? a + 4 आई कैप। अच्छा देखो बी का, देखो b -3, क्योंकि ये 4 और 3 अब बन गया -4 -3, वो कितना बन जाएगा? b -3 कितना बन जाएगा? b + 3 जे कैप। ठीक है। सो अब देखो यहां पे अगर हम लोग एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करने का कोशिश करेंगे तो, अरे पिछला बार तो वर्टिकल का साथ कर रहा था, इस बार एक्स एक्सिस का साथ क्यों? बिकॉज देखो यहां पे दिया हुआ है कि अब जो है ना, अब द सेम स्पीड से अगर ऊपर जा रहा है तो उसको लग रहा है कि रेन मेक्स एन एंगल थीटा विच इज tan इनवर्स इतना। किसका साथ? विथ हॉरिजॉन्टल। नोटिस करो इसको। सो इफ वी कंसिडर द एंगल ऑफ दिस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ हॉरिजॉन्टल, सपोज उसको अल्फा बोल दिए, तो tan अल्फा कैसे लिखेंगे हम लोग? जिसका साथ एंगल होगा, मैं क्या बोला था तुम लोगों को, जिसका साथ एंगल लेंगे उसको नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में।
तो एंगल तो इस बार ले रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल का साथ, तो हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस का साथ एंगल लेंगे तो एक्स एक्सिस जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, दैट मीन्स a+4, वहां पर नहीं यहां पे लिखना है a+4, और ऊपर में कितना होगा, ऊपर में होगा द अदर क्वांटिटी दैट इज दिस b+3। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ये tan थीटा का वैल्यू जो है ना 7/8 आ रहा है, देखो tan इनवर्स दिया हुआ है, तो मैंने tan थीटा वहां से क्या मिल जाएगा 7/8। नोटिस करके देखो a का वैल्यू ऑलरेडी 4 है, a का वैल्यू ऑलरेडी इज वी हैव फाउंड 4, सो a+4 बिकम्स 8, है ना। नोटिस करो a+4 कितना बन जाएगा, 4 + 4 8, ये 8 और ये 8 तो कैंसिल हो जाएगी। दिस गिव्स अस अ गुड वैल्यू ऑफ b, दैट इज b इज 4। अरे वाह क्या आंसर आ गया, a4 b4, a4 b4। तो हम लोग जो लिए थे दैट वेलोसिटी ऑफ रेन ओरिजिनली कितना था ai कैप प्लस b j कैप, वो आज हम लोगों का सामने ये बन गया 4i कैप प्लस 4j कैप, ये आंसर मिल गई। फ्रॉम दिस isn't it very easy to understand which answer is correct? The real velocity of rain, इसका वैल्यू पूछा है, वैल्यू ओनली मैग्नीट्यूड, तो कितना होगा √² प्लस बी स्क्वायर, समझ लो √4² प्लस 4² कितना हो जाएगा √32, दैट इज द आंसर। इज देयर एनी ऑप्शन, ऑब्वियसली होना चाहिए बी आंसर करेक्ट। अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अ कार इज मूविंग इन सच अ वे दैट इसका फ्रंट ग्लास जो है जिसको हम लोग बोलते हैं विंड स्क्रीन, वो तो उसका ऊपर तो रेन आ रहा है, बट जो रियर ग्लास है दैट इज पीछे वाला जो ग्लास है वो ड्राई है, ऐसा पॉसिबल होता है?